The lower half, the entire half of the country sits flight at the bottom, and the share of wealth here is not just fallen, it has plummeted. Bottom 50%, they had almost 11.5% in 1961, and today it is 6.5%. Who needs reservation? These people, irrespective of caste and religion. दिल्ली में आपको लेबर भी ऐसे मिल जाएंगे जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से ऊपर है, और मेरा ख्याल से बहुत सारे भिखारी भी होंगे। तो वेल्थ का कैलकुलेशन किस तरह से होता है? अब पिकेटी ने क्या कहा था, किसी को कुछ समझ आया कि नहीं आया? मुझे तो समझ नहीं आया, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो भी रिवील होती हैं, चाहे वो IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, वो गवर्नमेंट सप्लाई करती है स्टैटिस्टिक्स, उसी के बेस पे ये बात की जाती है। Friends, today's video, the most relevant with respect to the current issue, we are talking about caste census. I till date do not understand what will happen to that census. If the reservations are increased from 50 to say 65, what difference, how much difference will it make? The votaries of the reservation, can they tell you? But the point is how we view this. We had a news yesterday in Morning Standard. It was very brief and confusing, but we had the two news in Hindustan Times yesterday and today, which I am relying upon. It talks about the rich, the middle class, and the poor. That was the caption. And what does it say? It tells you how many people share of national wealth, top 1%, the rate it has shot up, you can see, and the bottom 50%, how it has come down gradually, but still significantly. It's very clear. The same graph is there, representing the same thing. Next slide was, who owns India's wealth? Top 0.1%. In 1961, they had 3.2% of the wealth, and today they have 29%. Next is overall 1%, including this 0.1%. In 1961, they owed 12.9% of the wealth. Now they have almost 40, you can say, from 13 to 40. Overall, how much is this? This 1% is there. And if you take off 10%, whole 10%, including top 1%, they had 45% almost, and now they have 64.5. What does this mean? The remaining 90% who are there are the people who are poor. They hardly have just 35% of the total wealth. So, how many people should get reservation? And we can go further. Meanwhile, 40% further down on the scale, after that 10%, they had 43%, almost 44 you can say, and now it has gone down by almost 14%, gone down. And still, if you are not satisfied, this is 50% of the people, and the remaining 50%, the lower half, the entire half of the country sits flight at the bottom, and the share of wealth here is not just fallen, it has plummeted. Bottom 50%, they had almost 11.5% in 1961, and today it is 6.5. Who needs reservation? These people, irrespective of caste
and relation. Will anybody lend the ear for this? And then, who makes a cut? With estimated adult population of about 92 crore, the 1% less than 0.9 means 9 lakh or so. 1% they are almost 1 crore. 10% they are, this is 92 lakh and this is 92 crore. How annual income compares? Most of the India earns so very little that all it takes to break into the top 10% of income earning is just rupees 2.9 lakh a year. साल में अगर आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप टॉप 10% में आ जाते हैं। तो रिजर्वेशन तो जाहिर है 90% को चाहिए भाई। हाउ एवरेज वेल्थ कंपेयर्स? मोस्ट ऑफ द इंडिया so little that all it takes to break into top 10%. This is a net worth of 22 lakh. World Inequality Lab Income and Wealth Inequality in India 1922 to 23. 1922 to this last 2 years. The rise of the billionaire Raj by Bharti टिकटी एंड सोमांची। इतने लोग जो हैं आपको, मोस्ट ऑफ द इंडिया ओ सो वेरी लिटिल दैट ऑल इट टेक्स टू ब्रेक इनटू द टॉप 10% ऑफ वेल्थ ओनर्स इज ए नेट वर्थ ऑफ 22 lakh. I disagree with that. Why? Because these figures, these are generated artificially. वेल्थ हम लोग काउंट करते हैं एज पर द स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय द स्टेट। 2.9 लाख पे अगर आप इधर आ जाते हैं, इफ यू हैव से 3 लाख और सो वेल्थ, यू अमंग 10%। 3 लाख रुपए में तो दिल्ली में 2 गज जमीन भी नहीं मिलती भाई। But government rates are different, market behaves differently. जैसे मेरा जो घर है, सर्कल रेट्स हैं 65 लाख, मार्केट रेट है 2 करोड़। Why you keep सर्कल रेट so low? हमेशा यही होता है बड़े शहरों में भी, और नए जो जिले बसाए जाते हैं, जैसे अभी आपने राम मंदिर बनवाया, आसपास का सारा एरिया में सर्कल रेट इतना लो था कि सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग जो लॉबिस्ट हैं वो सब ने वो जगह खरीद ली, और उसके बाद सरकार ने सर्कल रेट्स बढ़ाए, और बढ़ाए भी तो कितने। अगर मेरे घर का रेट 2 करोड़ है तो सर्कल रेट कम से कम 1.5 करोड़ तो होना चाहिए। क्या सरकार को जो है वो वेल्थ मंजूर नहीं है? क्यों नहीं करती सरकार? पता सबको है, करेगा कोई भी नहीं। दिल्ली में आपको लेबर भी ऐसे मिल जाएंगे जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से ऊपर है, और मेरा ख्याल से बहुत सारे भिखारी भी होंगे। तो वेल्थ का कैलकुलेशन किस तरह से होता है? अब पिकेटी ने क्या कहा था, किसी को कुछ समझ आया कि नहीं आया? मुझे तो समझ नहीं आया, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो भी रिवील होती हैं, चाहे वो IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, वो गवर्नमेंट सप्लाई करती है स्टैटिस्टिक्स, उसी के बेस पे ये बात की जाती है। देन देयर आफ्टर द हाउसिंग स्क्वीज, प्राइस टू इनकम रेशियो इन हाउसिंग इंडिकेट्स हाउ द प्राइस ऑफ ए हाउस कंपेयर्स विद द एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन द सिटी। मुंबई में आप 14 इयर्स तक अगर सर्विस करते हैं तब जाके आप एक मकान बना सकते हैं। दिल्ली में 10 साल, चेन्नई में 5 साल। सोर्स हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इन मेजर इंडियन सिटीज रिपोर्ट बाय मैजिक ब्रिक्स। सारे मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात है, एंड दिस इज लिटरली इम्पॉसिबल। अगर आप बात करें, मैं आपको बता रहा हूं कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है। वो जो
कहा उसने 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में, अब तो कतई नहीं मिलने वाली, ना दिल्ली में ना मुंबई में। तो ये फिगर्स जो है सारी की सारी जमती नहीं है बात। टॉप इनकम शेयर तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव, दिस चार्ट compares the income shares of India's top 10% and top 1% with those in the handful of countries, including some of the world's most unequal. In 2023, the income of India's top 1% was not only the highest among these countries, but the highest anywhere in the world. Source World Inequality Lab. इंडिया में जो है शेयर ऑफ नेशनल इनकम के हिसाब से साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील, यूएस टॉप 10% में और बाकियों में बिल्कुल कंट्रास्ट देख सकते हैं। और इंडिया में जो है जो हालत है, आप क्या कहेंगे आप? नाउ द क्वेश्चन इज कि आप किस बेस पे जो है कास्ट की बात करेंगे और किस बेस पे आप रिजर्वेशन की बात करेंगे। अच्छी बात क्या है, मुझे तारीफ करनी चाहिए कि सरकार ने सेंसस के साथ ही कास्ट सर्वे को जोड़ दिया है, तो जो एडिशनल जो खर्च होना था 8-10 हज़ार करोड़ रुपया वो बच जाएगा। लेकिन उसके साथ ही टाइम टेकन भी बढ़ जाएगा और ये जिम्मेदारी दी जाती है स्कूल टीचर्स को, और स्कूलों की हालत तो हमें पहले से ही पता है। तो ये एक्सरसाइज जो सरकार अब कर रही है, इट वाज आल्सो टेकन इन 2011 सेंसस, कि पता लग जाए कि गरीब कौन है अमीर कौन है। अब जब पॉवर्टी आपको क्लियरली नजर आ रही है, और अब ये देखें जो आज की जो न्यूज है हिंदुस्तान टाइम्स में, व्हाट वी नो अबाउट द कास्ट इनइक्वालिटी इन इंडिया। पहले कंजम्पशन इनइक्वालिटी बाय कास्ट इज स्मॉलर देन एसेट इनइक्वालिटी। कंजम्पशन इनइक्वालिटी कम कैसे है? क्योंकि सरकार फीड कर रही है, कंजम्पशन तो होगी होगी। सरकार को फंड्स डेवलपमेंट के लिए खाली 1 महीने के लिए रोक दें इन सब के लिए, जैसे यूएस ने किया है, तो पता लग जाएगा कितने गरीब हैं। यहां तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। शेयर एसेट्स एंड स्पेंडिंग रिलेटिव टू शेयर इन द पॉपुलेशन। अदर्स में जो है एसेट स्पेंडिंग रिलेटिव टू द शेयर, बैकवर्ड्स में रिवर्स हो गया थोड़ा, एससीज में और रिवर्स हो गया, एसटीज में थोड़ा कम हो गया। शेयर इन एसेट्स रिलेटिव टू द शेयर इन द पॉपुलेशन जून 30, 2018, एंड शेयर इन स्पेंडिंग रिलेटिव टू द शेयर इन द पॉपुलेशन अगस्त 23 टू जुलाई 24। तो एसेट्स का शेयर जो है रिलेटिव टू द पॉपुलेशन जनरल में ज्यादा है, बीसीज में कम हो गया, एससीज में और ज्यादा कम हो गया, एसटीज में थोड़ा इंप्रूव हो गया। Then OBCs, SCs and STs have a disadvantage when it comes to the salaried jobs. नौकरी पेशा नौकरी उसमें केसेस में SC, ST, OBC जनरल कैटेगरी डेफिनेटली बेहतर होती है। और इसी वजह से जो है सैलरीड में जो है विद रिटर्न कनेक्ट, दिस इज सैलरीड गवर्नमेंट लोकल बॉडीज, ऑल रेगुलर वेजेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल लेबर। एसटीज में कैजुअल लेबर बहुत ज्यादा है, एससीज में उससे भी ज्यादा है, ओबीसीज में बहुत कम है और जनरल में और भी कम है। लेकिन सैलरीड विद रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एसटीज में सबसे कम, जनरल में सबसे ज्यादा। ये जो है सबको पहले से पता है, पर सवाल इस बात का है कि ऐसा क्यों, वो हम आगे जानते हैं। कास्ट इनइक्वालिटी इन एजुकेशन बिकम बिगर इन टेक्निकल एजुकेशन, ये सारा ग्राफ वो शो कर रहा है। पर मुद्दा ये है कि टेक्निकल एजुकेशन में ये डिफरेंस बढ़ क्यों जाता है। सिंपल सी बात है,
आप अगर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो टेक्निकल एजुकेशन में तो और ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी परसों की न्यूज़ है चाहे कि आईआईटी दिल्ली में सिर्फ 3% लोग हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं एकेडमिक्स में, पीएचडी। आप मुझे एक चीज बताओ, कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी पीएचडी क्यों करना चाहेगा आईआईटी में, वो भी जब आप एज एन आईआईटी ग्रेजुएट आराम से 5, 6, 8, 10 लाख का मिनिमम पैकेज आपको मिल सकता है। एंड बाय द टाइम यू फिनिश योर एमटेक एंड देन पीएचडी, आपको जो सैलरी मिलेगी उससे ज़्यादा एज ए बीटेक उस एक्सपीरियंस के साथ कमा रहे होंगे, तो क्यों बनेंगे आप? मैं दसियों बार बोल चुका हूं कि जब तक एजुकेशन का रिस्पेक्ट नहीं होगा, जब तक टीचर का रिस्पेक्ट नहीं होगा, अच्छे लोग नहीं आएंगे। और जो हाल हो रहा है पूरी एकेडमिक्स का सब लोग जानते हैं। बहुत ही मीडियोकर किस्म के लोग, अनलेस जेन्युइन इंटरेस्ट जो होता है, और जिनका जेन्युइन इंटरेस्ट होता है उनका एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से होता है, बेहतर होगा कि खुद बनाएं वीडियो उसके बारे में। जब पता है कि प्रमोशन ऑटोमेटिक होनी है वंस यू गेट इनटू द जॉब, तो कोई मेहनत क्यों करेगा? तो एजुकेशन का जो लेवल है प्राइमरी और सेकेंडरी का, आप कह दें ये तो स्टेट का मैटर है, हायर एजुकेशन या सेंटर का मैटर है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टेट्स कहती है हमारे पास फंड नहीं है। अब कम से कम जो स्टेट्स जिनकी इस पार्टी की गवर्नमेंट है सेंटर में, उनकी स्टेट्स में तो बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय पार्टीज एंड द पार्टी इन पावर जहाँ सेंटर में है, अगर स्टेट में भी वही है तो परफॉर्मेंस ओवरऑल गिनी जानी चाहिए। हम लोग नहीं सोचते इस बारे में। जहाँ प्राइमरी लेवल पे सारा काम एडहॉक टीचर्स पे चलाया जाता है, एकलव्य की रिपोर्ट, स्कूल्स की रिपोर्ट सब जानते हैं, असर की रिपोर्ट हम सब जानते हैं, किस तरह से जो है। जैसे मैं खुद जब बिरहोर की स्टडी कर रहा था तो मैंने एक संथाल गांव था गिरिडीह में, जहाँ मैंने एक सर्वे किया। 36 बच्चे थे 8वीं क्लास में, और उनसे मैंने कहा कि 1 to 15 लिखिए देवनागरी में और रोमन में। सिर्फ 9 बच्चे लिख पाए करेक्टली, 25%। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हायर लेवल पे जाकर के भी वो उतना ही अच्छा करेंगे जितना जनरल वाले? आप जितनी मर्जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आइए, हाँ, रिपोर्ट्स कह चुकी हैं, एंथ्रो में जो सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव माना जाता है वो वर्जीनियस काका हैं। उनका लेक्चर है अभी 2023 का कि देयर इज नथिंग फॉर ट्राइबल्स इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और ट्राइबल्स के लिए नहीं है तो ऑब्वियसली शेड्यूल कास्ट के लिए भी नहीं होगा, बिकॉज ही टॉक ओनली अबाउट ट्राइबल्स। It is basically an issue of rural urban divide, urban metro divide। और जब तक हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, मैं बकायदा मॉडल प्रेजेंट कर चुका हूँ, दैट एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल, कंपल्सरी, क्वालिटी एंड फ्री। फ्री का मतलब फ्री नहीं, फ्री ऑन द पैटर्न ऑफ स्टडी नाउ पे लेटर। प्राइमरी लेवल पे आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में करिए। मैं तो चाहूंगा कि लोकल लैंग्वेज का रोल होना चाहिए, सरकार इतना पैसा खर्चेगी नहीं। बट मिडिल स्कूल और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, यू गॉट टू हैव यूनिवर्सल, फॉर विच यू विल हैव टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस, टीचर सर्विस ऑन द पैटर्न ऑफ सिविल सर्विस।
और जो लोग पढ़ाई में पीछे रहते हैं वो ये देखा जाए कि क्या और किसी और आर्ट में वो आगे हैं तो उनको उधर प्रमोट किया जाए। वैसे भी ये जो एजुकेशन है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन, ये हमें सिखाता क्या है? इंसान बनना तो नहीं सिखाता कम से कम, बाकी मुझे पता नहीं। आप जो दुनिया में अंधी दौड़ में लगे हैं, अपने देश में तो जो है कम से कम ढंग से कंक्लूड तो कर लीजिए, आप मत कीजिए कुछ समाज के लिए, पर सोच तो अपनी सुधार लीजिए। जो गरीब होता है वो गरीब होता है, वो SC ST OBC जनरल नहीं होता, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, गरीब गरीब होता है। और मैं उसके लिए बता भी चुका हूं, अगर आपको 50% रिजर्वेशन ही रखनी है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, तो गरीब का फैसला होना चाहिए। हालांकि 90% गरीब नजर आ रहे हैं, पर क्योंकि 50% रखनी है, बहुत आसान तरीका है। आज से 3 साल पहले सर्वे हुआ था तो पता लगा था कि 50% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, 50% प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल 70% थे, प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल 30%। लास्ट ईयर की रिपोर्ट ये है कि पिछले 10 साल में जितने भी स्कूल खुले हैं उसमें से 70% प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल हैं। तो जो लॉबी है, आप हॉस्पिटल खोलते हैं, आप स्कूल्स खोलते हैं, आप ये सारी लॉबी जो है यही सरकार की फंडर है। देश का भला कोई नहीं सोचता। मैं हमेशा कहता रहा हूं, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, ये 4 ही इशू होने चाहिए डेवलपमेंट के। आप स्टैटिस्टिक्स जितना मर्जी जनरेट कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बहस करके कोई फायदा है, क्योंकि उसमें तो फिर बार बार मौके मिलेंगे, साल भर बाद फिर वही हालत हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। 0.1% इधर हो जाएगा, 0.1% उधर हो जाएगा। आप खुश होते हैं कि आपकी जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हो गई। अरे यार, ऑन पेपर होना और असलियत होना तो भाई 81 करोड़ लोगों को खाना क्यों खिला रहे हो? वही कंजम्पशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो इसी वजह से है। पॉलिसी मेकर्स को, प्लानर्स को, सोशल साइंटिस्ट को, NGOs को, सबको सोचना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए कि गवर्नमेंट का कोई डेफिनेट प्रोग्राम होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के बेस पे अगर डेमोक्रेसी चलती है तो किस काम की है डेमोक्रेसी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा भी था एक बार, क्या है डेमोक्रेसी? 1 idiot is equal to 1 genius, 2 idiots are more than 1 genius। आप जितने ज्यादा लोगों को जितने लंबे टाइम तक बेवकूफ बना के रख सकते हैं, आप उतने अच्छे नेता माने जाते हैं डेमोक्रेसी में। हम सबको सोचना चाहिए, मुझे लगता है। थैंक यू।